IT faculty, Mr. Alok Kumar. So I would like Alok sir to unmute his mic so that the voice will be audible to us. So Alok sir. Yes, sir. Okay, so is my voice First, audible to you? yes, sir. Okay. Clearly. First of all, thank you to Mr. Dr. Rajiv, sir, to say something about me. Then, Okay. Okay, so sir, I would like to ask you something so that students will know that what are we covering. So can you tell me what will be your topic you'll be focusing on? answer by speech. My topic I will explain just now with an introduction. Okay, and I would also like to know that do you like the screen share? Should I on it or you can speak in front of the camera? No, sir, not screen share. I can speak. Okay, okay, okay. Thank you, sir. So, the Over to speak. you now. Okay. Honorable management, respected teachers, and my dear students. A very warm good morning to all of you. This is Alok Kumar, IT faculty, being a part of today's webinar session. Feeling glad and thankful to our CPS management to make me the part of this motivational session. For this, I have got the topic which is which is effective teaching methodology and skill. Effective teaching methodology and skills. So, without wasting your precious time, I would like to come to the point. Then my topic is effective teaching methodology. Dr. Rajiv sir, Yes, sir. are you listening to me Yeah, clearly? yeah, I'm listening to very clearly, and If if students, you should also pay attention so that if yeah, there will be any question, any doubt, any suggestion at the last of the speech, you can ask last. Alok sir. Yes. Thank you, sir. Okay, so my topic is effective teaching methodology and skills. Okay, Oh, because we are related to teaching profession, we all here present our respective teacher and my student. So I am selecting this topic for us. Now start. First of all, what is effective teaching methodology? We will understand. What is effective teaching methodology and skill? The classroom is a dynamic environment bringing together students from different background, students from different background with various ability and personalities. Being an effective teacher, we are required the implementation of creative and innovative teaching strategies in order to meet student individual needs. I can also explain in Hindi. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल, हमारे क्लास में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी पर्सनालिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी बिहेवियर होती है, और उन बच्चों के बीच में हम टीचर को उनका मॉडिफिकेशन करना होता है, उनका डेवलपमेंट करना होता है. तो बच्चों को लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत आसान है, लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए डियर, तो दिस इज वेरी हार्ड प्रोफेशन. ये बहुत हार्ड प्रोफेशन. ऑलवेज
हमेशा मैं क्लास में कहता रहा हूं, अगर एक पत्थर को तोड़ना हो तो दैट इज वेरी इजी। हम उस पे 2 हथौड़ा मारते हैं, नहीं टूटता है, 4 हथौड़ा मारते हैं, नहीं टूटता है, लेकिन 5वां हथौड़ा में वो पत्थर टूट जाता है। लेकिन विदाउट एनी मीडिया, विदाउट एनी वायर, हम अपने मन की बातों को, हम किताब की बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। सपोज दैट इन आवर क्लास 50 स्टूडेंट, हमारे वर्ग में 50 बच्चे हैं, तो some are very intelligent, some are medium, some are low, और some are out of low, उससे भी नीचे हैं। तो अगर मैं एक तरीके से अगर उसे एक्सेसिंग करूंगा तो केवल हमारे जो जीनियस बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, केवल वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी थोड़ी अच्छी है गेन करने की। लेकिन नहीं, मुझे केवल उन बच्चों को लेकर टीचर को नहीं चलना होता है। मुझे क्लास में 50 स्टूडेंट है तो मुझे 50 स्टूडेंट को लेकर चलना होता है। तो देन हम उसमें एक इफेक्टिव स्किल को, एक प्रभावी तरीकों को चुनते हैं, जिससे कि हमारे क्लास के 50 स्टूडेंट का उनका डेवलपमेंट हो। अगर वो स्टूडेंट कुछ हमारे लो में भी हैं तो उन्हें भी लेकर मेरा चलना मेरा कर्तव्य बनता है। दिस इज माय ड्यूटीज, क्योंकि उनके भी माता पिता सेम फी दे करके उन्हें स्कूल में भेज रहे हैं। और नहीं तो आप देखते ही होंगे 9th ए के स्टूडेंट या जो भी क्लास के हो, हर बच्चों से हर टीचर सवाल तो करते ही हैं। हर का होमवर्क चेक करना, हर का क्लास वर्क चेक करना, हर का एक बारीकी से देखना। तो now there are a lot of effective teaching methodology, a lot of teaching methodology। अगर हम लोग उसको रिसर्च करें तो लॉट्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी है। लेकिन आज मैं लॉट्स ऑफ, उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे मेथोडोलॉजी पर आपके सामने मैं डिस्कस करूं, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ देम। हम यहां कुछ मेथोडोलॉजी पे, कुछ इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, उस स्किल्स पर हम टीचर आपके सामने बात करेंगे कि हाउ विल वी डेवलप योरसेल्फ, डेवलप योर एजुकेशन। कैसे हम आपके शिक्षा को, आपके बिहेवियर को, आपके डिसिप्लिन को, आपके मैनर को, आपके बुक एजुकेशन को हम कैसे डेवलप करते हैं, और उसके लिए हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, और हम लोग किस किस क्राइटेरिया को अपनाते हैं। तो थोड़ा प्लीज सीरियस होकर के आप सुनेंगे थोड़ा सा, कि हाँ मतलब कि हम ज्यादा तो नहीं लिए हैं, कुछ पॉइंट को लिए हैं, और कुछ पॉइंट पर आप भी रिसर्च कीजिए कि क्या दैट इज राइट या रॉन्ग। तो चलते हैं। यू कैन, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी। मेरे थिंकिंग के अनुसार आप लोग समझ गए होंगे कि इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड स्किल्स क्या है। नाउ one by one I am explaining the point. First of all, visualization. First point, visualization. Visualization क्या होता है पहले ये देखिएगा। Bring academic concept to life with visual and practical learning experience, helping our student to understand how is their schooling apply in the real world। मीन्स जब हम टीचर चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, तो चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय या मैं किसी डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाता हूं, तो उस समय मैं जो एग्जाम्पल जो देता हूं वो मैं रियल वर्ल्ड से आपको जोड़कर देता हूं। अगर बी टीचर, अगर हम लोग शिक्षक 5 क्लास में हैं तो हम लोग 5 क्लास के लायक बच्चों को तो तोड़कर समझाते हैं। अगर हम 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास के लायक समझाते हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ा नर्सरी क्लास से भेज दिया जाए तो उनको गोदी में लेकर खिलाकर उनको नर्सरी लायक हम लोग बिहेव कर हम लोग उनको पढ़ाएंगे। तो शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि
शिक्षण अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षकों की चाहिए कि विषय वस्तु को बच्चे को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर समझाएं, बच्चे को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर समझाएं, ताकि बच्चों को क्लास में बैठे बैठे इसे विषय वस्तु के अपने जीवन से जोड़कर वो कल्पना कर सके। हम टीचर जैसे कोई भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में जो एग्जाम्पल होता है जैसे सब्ट्रैक्ट का ही है, तो एक बच्चे को हाथ में 10 आम दे दिए, अब उसमें से बच्चे को बोल दिए कि आप 5 मैंगोज मुझे दीजिए। अब बच्चे ने 5 मैंगो उसे दे दिया, तो उनके हैंड में बचा 5 मैंगोज। तो ये एक वास्तविक क्या हो गया, एक हाथ में दोनों बच्चे को खड़ा कर दिए, एक सब्ट्रैक्ट सिखाने का बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि अगर मेरे पास से अगर हम किसी को दे देते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सब्ट्रैक्ट। अगर दो बच्चे को 5-5 मैंगो लेकर के खड़ा कर देते हैं और दोनों को एक साथ एक को हाथ में दे देते हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ऐड। ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अभी हम यहां पर नहीं बोलेंगे कि स्मार्ट क्लास इज अ विजुअलाइजेशन, नहीं, स्मार्ट क्लास इज अ टेक्नोलॉजी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, दैट इज नॉट अ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मींस वी कैन गिव द एग्जांपल, वी गिव द एग्जांपल टू आवर रियल लाइफ। हम बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के दौरान जो हम एग्जांपल देंगे वो एग्जांपल हमारा रियल लाइफ से होगा, और बच्चे क्लास में बैठ कर करके वो कल्पना करेंगे कि मैं कहीं और ये वर्क को कर रहा हूं, और जिससे बच्चे को क्लास में बैठे बैठे कुछ और वो कल्पना कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट ये हमारा हुआ कि विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू टीचिंग मेथोडोलॉजी। पढ़ाने के दौरान हमें बच्चों को किसी रियल लाइफ से जोड़ करके उन्हें कोई एग्जांपल देंगे ताकि बच्चों को समझने में वो आसानी हो। दैट इज क्लियर। नंबर 2, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। इंक्वायरी, यू नो वेरी वेल, इंक्वायरी मींस जांच पड़ताल होती है। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, encouraging स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, इंकरेज करना। जब हम एक्सप्लेन करने हो तो हमें ऐसा अपना फेस नहीं बनाना चाहिए ताकि बच्चा हमसे डरकर सवाल ही ना पूछे। इंकरेज, हमें स्टूडेंट को इंकरेज करना चाहिए। encouraging student to ask question and investigate their own ideas help the empire their problem solving skills। जब हम एक्सप्लेनिंग करते हो तो बच्चे को इंकरेज मुझे करना है। एक हमारी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेकंड पार्ट है कि हमें उन्हें क्वेश्चन, उनके अंदर हेजिटेशन होता है बच्चों के अंदर, अगर नहीं भी समझते हैं तो क्लास में बहुत सारे बच्चों को हंसने के डर से वो सवाल पूछने में अपने आप को नहीं समझ पाते। तो उन बच्चों को मुझे ऐसा करना चाहिए कि अगर उन्हें जहां भी कहीं एक क्वेश्चन एनालाइज हो या उनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, वो बच्चे हैंड रेज करके रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने टीचर से क्वेश्चन एनालाइज करें। क्वेश्चन एनालाइज ही ना करें, बल्कि हमें उनको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चन एनालाइज करने के दौरान वो सॉल्यूशन भी वो ढूंढे। अगर एक बच्चा हमसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं वही क्वेश्चन का आंसर मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगा, और जब दूसरे बच्चे उस सॉल्यूशन देंगे तो वो बच्चे के अंदर एक थिंकिंग डेवलप होगा, एक बॉर्न होगा, और वो भी सॉल्यूशन करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्रिएट करना अदर मैटर, सॉल्यूशन इज द सेकंड मैटर। तो क्वेश्चन तो वो क्रिएट किए, लेकिन अब मुझे केवल उनको क्वेश्चन क्रिएट करने के लायक नहीं बनाना है, बल्कि उनको मुझे सॉल्यूशन ढूंढने वाले बनाना है। सपोज दैट आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन का मैंने टीचर जो लिखवाया वो टीचर का क्वेश्चन आंसर नहीं याद है, बट यू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। आपके पास कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का, बट आपके पास उसका वर्ड पावर नहीं है। तो आपको वहां पर ट्राई करना चाहिए कि जब कॉन्सेप्ट है तो आप अपने छोटे छोटे सेंटेंस में आप उसका आंसर लिखें। होना बच्चों को चाहिए, टीचर को ये प्रेरित करना है, बच्चों को उनके अंदर इस चीज को बॉर्न करना है, इंक्रेज करना है उनके अंदर, ऐसा इंस्टेडी उत्पन्न करना है कि बच्चे क्वेश्चन टीचर से पूछे। ये नहीं कि सर पीटेंगे, नहीं, हमें नहीं पीटना है, हमें बच्चों को बताना है। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरे बात तीसरे तरीके से एग्जांपल से देंगे, बच्चे समझेंगे और उनको प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम को अगर पहले कोशिश करना है कि स्टूडेंट ही प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लेकिन जब अगर उनसे सॉल्व नहीं होती है तो फिर मुझे उनको
को सॉल्व करके उनको बताना है। द इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, हमें ये देखना है कि बच्चों के अंदर क्या हेजिटेशन है, बच्चों के अंदर एक क्या सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका उनके अंदर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनके अंदर मुझे इस चीज को डेवलप करना है, उनको बोल्ड करना है बच्चे के अंदर, ताकि वो इस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। दिस इज द सेकंड पार्ट, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। नंबर थर्ड, differentiation. Number third, differentiation. Teacher must differentiate their teaching by allocating tasks based on student abilities to ensure no one gets left behind. इस तरह की शिक्षण अधिगम में शिक्षकों को चाहिए कि वे विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार टास्क दे, ताकि कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी मुख्य धारा में आ सके। कहने का अर्थ यह हुआ, मैंने क्लास में एक्सप्लेनेशन किया, मैंने होमवर्क मैंने एक जनरल तरीके से दे दिया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं कि क्लास में 4 तरह के बच्चे होते हैं। अगर मुझे मालूम है कि ये बच्चे ये होमवर्क करके लाने में समर्थ नहीं है, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि बच्चों को देखते हुए थोड़ा होमवर्क को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि इतने से इतने बच्चों को ये रोल नंबर को ये टास्क हो गया, और जो बच्चे को देखते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है तो उनके लिए मैंने अलग टास्क मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि अगर उनको से टफ टास्क ना बन सके तो वो हताश ना हो, वो ये ना कह सके कि सर पढ़ाएं और मुझे समझ में नहीं आया, आज होमवर्क लेकर नहीं जाएंगे तो सर मुझे पीटेंगे या सर मुझे क्लास में पनिशमेंट देंगे। नहीं, उन बच्चों को थोड़ा सा हम इजी टास्क देंगे, उन बच्चों को हम थोड़ा सा इजी टास्क देंगे, ताकि वो उत्साहपूर्वक वो अपने होमवर्क करके वो क्लास में लेकर क्या करेंगे, वो आएंगे। आज जब वो आएंगे तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, होना ही होना है, उनका भी डेवलपमेंट होना ही होना है। तो डिफरेंशिएशन क्लास में बच्चों के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। हम टीचर डिफरेंशिएट कर करके हम बच्चों को टास्क को प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंशिएट पढ़ाएंगे ना, पढ़ाने के लिए तो हम जितना हाई लेवल से होता थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा और उनको एग्जांपल देंगे, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब होमवर्क की डिफरेंशिएशन, जब उनकी क्लास वर्क की डिफरेंशिएशन जब देंगे तो थोड़ा सा उनको डिफरेंस को समझेंगे कि क्या वो ये टास्क को कर पाएंगे कि नहीं। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए कुछ मैं अलग टास्क प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वो हंसते हुए उनकी आसानी से वो टास्क को सॉल्यूशन वो क्या कर पाते हैं, वो कर पाए। नंबर 4 इज कंप्लीट। नंबर 5, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, incorporating technology into our teaching is a great way to actively engage our student to understand and learn the topic. सिंपली तो हम जाते हैं, किताब खोलते ही हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चे की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे को टीचिंग करनी चाहिए, ताकि बच्चे इंगेज्ड क्लास में वो फ्री ना महसूस कर पाए, वो इंगेज्ड हो जाए। TLM एक होती है टीचिंग लर्निंग मेथड, TLM। ऐसे तो आप लोग की स्कूल में हमारे प्रोजेक्टर क्लासेस है, जिसको कि हम लोग सीपीयू से जोड़ कर करके, अपने लैपटॉप से जोड़ कर करके, मॉनिटर से जोड़ करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इंटरेक्टिव incorporating technology into our teaching is a great way to actively engage to our student to understand the learn the topic। जो कि आसानी से अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो उस मेथड से, उस टेक्नोलॉजी के मेथड से, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप कनेक्टिंग विद द प्रोजेक्ट कैन be used to display the image
वीडियो, ऑडियो हेल्प्स स्टूडेंट द विजुअलाइज न्यू एकेडमिक कॉन्सेप्ट। हम उस ऑडियो के माध्यम से, हम उस वीडियो के माध्यम से, हम उस इमेज के माध्यम से, हम उस कार्टून के माध्यम से हम उस बच्चे तक हर इंफॉर्मेशन को उनको पहुंचाएं। ठीक है, स्पीच के माध्यम से हम पढ़ाते ही नहीं, लेकिन आप लोग की जैसे छोटा सा आप लोग प्रोजेक्टर क्लासेस में ले जाया जाती है, तो प्रोजेक्टर क्लासेस में ले जाने के बाद अगर कोई सर हमारे साइंस फैकल्टी हैं, अगर वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी हमारे स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो पूरे स्केलेटन सिस्टम को आपको डिस्प्ले कर दिए और 1 बाय 1 करके सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप जो किताब से वहां सर पढ़ाते थे, आज वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सर पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन उसमें बढ़ जाएगा, आप इंगेज ज्यादा होइएगा कि देखो आज यहाँ पर क्या सर डिस्प्ले किए हैं और कौन सी चीज को क्या के बारे में सर इन्होंने पढ़ा रहे हैं। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड। अगर जिस स्कूल में प्रोजेक्टर क्लासेस नहीं है तो घड़ी में उस चार्ट पेपर पर या किसी भी चीज पर हम एक बना देते हैं और बना करके वो बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर, बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, सर ने क्या करके लाया होमवर्क, आज सर हम लोग को क्या बताने वाले हैं। अगर उस मेथड से हम अगर बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं डियर, तो बच्चे की इफेक्टिव ज्यादा ही हो, वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और वो उनको सीखने में ज्यादा ही उनको इंटरेस्ट आ जाता है और डेली की तुलना में उतना ज्यादा ही सीखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आवर बिहेवियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आवर बिहेवियर मैनेजमेंट, दिस इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेवियर मैनेजमेंट क्या, implementing the effective behavior management strategy is the crucial to gain our student respect and ensure the student have an equal chance of the reaching their full potential. Noising, destructive classroom don't encourage a productive learning environment. Noising, destructive classroom never develop. कहने का मतलब है कि क्लास में जाने से पूर्व ही टीचर के पास एक प्री प्लानिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि क्लास में बच्चों शोर करना तो दूर की बात, वो दूसरे से बात ना कर सके, एक में प्लानिंग होनी चाहिए। अर्थात हमारे शिक्षण अधिगम इतना इंटरेस्टिंग हो कि बच्चों में हमारे प्रत्येक शब्दों का ध्यान पूर्वक सुने और शिक्षण अधिगम अपने सहभागिता को सुनिश्चित करे। मतलब कि हमें वर्ग में जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले हमारी क्या प्लानिंग हो, वो प्री प्लानिंग होनी चाहिए टीचर का। क्या आज मैं क्लास में जाऊंगा तो आज मैं कैसे बच्चों को, आज 40 मिनट की क्लास है तो कितने मिनट में मुझे क्या करना है, हर मिनट मेरा डिफाइन होनी चाहिए। जिस वर्ग में बच्चे शोरगुल कर रहे हो या पढ़ाई में बाधा पहुंचा रहे हो, ऐसे क्लास को उपयोगी शिक्षण अधिगम होना मुश्किल है। तो आप लोग समझ रहे हो, आप लोग खुद इसके एग्जाम्पल हो। जिस वर्ग में डिसिप्लिन नहीं होता है, जिस वर्ग में क्लास में बिहेवियर अच्छी नहीं होती है, जिस क्लास में बच्चों के या टीचर के प्रति रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, वो क्लास में डेवलपमेंट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट उस क्लास में। तो अगर वैसे क्लास होते हैं तो हम टीचर पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि क्लास में आज मुझे बच्चों के साथ क्या मुझे करना है, आज मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या टॉपिक लेकर जाना है, ताकि बच्चे हमारे बात ना करें, वो बच्चे इंगेज हो जाए, वो बच्चे हमारी हर बातों पर ध्यान दें। क्योंकि ये टीचर, हम सारे टीचर अच्छी तरह जानते हैं कि जिस क्लास में डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं होती है, जिस क्लास में शोरगुल होता है, उस क्लास में ना हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है और ना बाकी बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है। तो फिर डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, उसमें हम डेवलपमेंट की बात कैसे कर पाएंगे। नहीं, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इसलिए क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होना, बिहेवियर को मेंटेन होना, क्लास में नॉइजिंग नहीं होना, क्लास पीसफुल होना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है टीम वर्क।
टीम वर्क का मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। सोशल, व्हाट इज द सोसाइटी, समाज। और यू नो वेरी वेल, हमें वहां रहने के लिए भी मेरे पास एक क्षमता होना बहुत जरूरी है। आप सुने होंगे कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से नहीं उन्हें बात होती है, वो किन्हीं उनसे नहीं बनती है। तो उन्हें एक अच्छे सोशल होने के लिए, एक सामाजिक होने के लिए, एक स्कूल लाइफ से ही उनको मुझे डेवलप करना पड़ता है बच्चों को। Encourage students the mixed ability to work together by promoting the small group of whole class activities। अब आइए, मैंने यहां पर कहा कोऑपरेटिव इफेक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव होना। जैसे मैंने क्या किया कि कोई एक टास्क दे दिया, एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, और डिफरेंट डिफरेंट स्किल वाले बच्चों को एक ग्रुप मैंने बना दिया। डिफरेंट डिफरेंट स्किल वाले बच्चे को मैं एक ग्रुप बना दिया, और मैं क्या किया कि 10 बच्चे को ग्रुप बनाकर मैं ऑब्जर्व करने लगा। अब मुझे ऑब्जर्वेशन के दौरान यह देखना है कि बच्चे में टीम पावर कितनी है, कौन बच्चे कितने कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी एग्जांपल होगा, डायरेक्टर मैम आप लोगों को एक दी थी, एक प्रोजेक्ट वर्क दी थी, ऐसे दी थी कुछ पर लिखने के लिए, और 10 बच्चे को सिलेक्शन कर करके उन्होंने दे दी थी कि आप लोगों को इसमें वर्क करना है, और आप लोगों को ये आपका प्रोजेक्ट को तैयार करके स्कूल में विजुअलाइजेशन वीडियो के दौरान मुझे दिखाना है। और मैम खड़ा होकर देखी भी थी इस प्रोजेक्ट को, याद होगा, 8 क्लास के बच्चे को, 9 क्लास के बच्चे को, 10 क्लास के बच्चे को। ओके सर, तो आप देखे होंगे कि डायरेक्टर मैम ने इस क्यों दिए, क्या मैम का क्या लगा, एक बेस्ट एग्जांपल था। तो टीम वर्क, आप लोगों को अभी से ही मुझे प्रिपेयर करना है कि कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए आप लोगों के अंदर, एक दूसरे से सहभागिता होनी चाहिए, एक टीम वर्क होनी चाहिए। हम देखते हैं आप लोग को टास्क दे दिया, आप एक बच्चे ने बना के लाया, 9 बच्चे ने उसमें नाम को लिख दिया। नहीं, दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। आप कितने कोऑपरेटिव हो, आपने दूसरे को कितना मदद किया, ये होना बहुत जरूरी है। आप कितने कोऑपरेटिव हो, आपने कितने हेल्प किए, आप अपने जो मेंटर्स हैं, जो मॉनिटर्स हैं, जो उसके कैप्टन है, आप उसमें क्या सहभागिता दे रहे हो, ये होना हम लोग देखते हैं। और हम तो जस्ट नाउ मैं टीम वर्क पे बातें कर रहा था। तो टीम वर्क, हम बच्चे को सोशल बनाने के लिए, हम उसे सोशलिस्ट के लिए, ताकि उसके अंदर एक क्वालिटी हो जो किसी से किसी भी वस्तु को लेने देने में उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम उनको क्रिएट ना हो। क्योंकि यू नो वेरी वेल, हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में हम लोगों को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना ही हमारे लिए सबसे बेटरमेंट है। क्योंकि अपने से कह दे कि बहुत अच्छे हैं, ये बात नहीं होती है। जब तक 4 लोग मुझे नहीं बोल सकते कि वो बहुत अच्छे हैं, मैं खुद से चिल्लाते रहूंगा, कोई जानने वाले नहीं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करने के लिए हम स्कूल में, हम टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नॉलेज देने के साथ साथ, डिसिप्लिन को डेवलप करने के साथ साथ, आपको एक सोशल बनाना भी हमारा एक दायित्व बनता है। तो इसको हम एक कोऑपरेटिव इफेक्टिव लर्निंग के माध्यम से आपको हम एक सोशल बनाते हैं, ताकि आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो, ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी, जैसे देखते हो एग्जाम क्लास में, अरे मेरा पेन छूट गया, किसी के पास पेन है क्या, हाँ हाँ है, रुको मैं देता हूं। वाह, कितना अच्छा लगता है कि एक बच्चे के अगर पेन छूट जाते हैं तो दूसरे बच्चे उसे पेन निकाल कर क्या करते हैं, दे देते हैं। क्या ये चीज कहां सीखेंगे, हम लोग सिखाएंगे, और आप अपने घर में भी सीखते हैं। कहां ही जाता है, एक थोड़ी सी अलग हट का टॉपिक से बात कर रहे हैं, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रक्त मांस और अस्थि का पुतला होता है, वो बिल्कुल खाली डब्बा होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रक्त मांस और अस्थि का पुतला होता है, वो बिल्कुल खाली डब्बा होता है। लेकिन पहली पाठशाला उसका घर होता है, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन होते हैं। बच्चे घर में देखते हैं, बोलते चालते चलते फिरते बच्चे अपने तलवे के भर चलना सीखते हैं, अपने तुतलाकर कुछ बोलना सीखते हैं। और जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो माता पिता उसको अपने गुरु के पास भेजते हैं, स्कूल में, विद्यालय में भेजते हैं। तो बच्चे की निर्माण, बच्चे का संस्कृति का निर्माण, बच्चे का व्यवहार का निर्माण, बच्चे का चरित्र का निर्माण,
बच्चे को गुरु और माता पिता से होते हैं, उसकी सोसाइटी से होती है। अगर बच्चा जाता है सोसाइटी में, एक बॉल उठाकर लाता है और माता पिता पूछते हैं कहां से लाए हो, तो बोलता है मैं चुरा के लाया है। अगर उसी समय माता पिता ने उसके पीठ पर शाबाशी दे दी तो बच्चा वहीं से दिन से उसका बिगड़ना शुरू हो जाता है, वो बच्चा चोर होना जाता है। अगर उसी दिन माता पिता उसे 2 थाप लगाते हैं, बेटा दैट इज वेरी बैड हैबिट फॉर यू, दिस इज वेरी बैड हैबिट, आफ्टर टुडे यू विल नॉट डू लाइक दिस वर्क, आज के बाद तुम ऐसा करोगे तो तुमको बहुत पनिशमेंट करेंगे। कल होकर बच्चा ऐसा काम करने से वो डरता है। तो वही बात कहते हैं, हम टीचर और माता पिता, विद्यालय, घर और हमारी सोसाइटी, बच्चे का हर चीज का निर्माण में उनका एकदम प्रथम रोल होता है। उनकी बच्चा का चरित्र के निर्माण में, बच्चे के व्यवहार के निर्माण में, बच्चे के ज्ञान के निर्माण में, सारे में हम लोगों की जवाबदेही बहुत होती है। ताकि जिस तरह का कुम्हार बर्तन को ठोक कर सुंदर बनाता है, उसी तरह हम टीचर भी, हम लोग का कोशिश यही होता है कि आप लोगों को केवल किताबी ज्ञान ना दे करके कॉरिडोर में ही देखते हैं। क्यों कॉरिडोर में खड़े रहते हैं लंच में हम सारे टीचर? हम लोग को भी भूख लगती है क्या? नहीं लगती है। सोनी सर को भूख लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन खड़े इसलिए होते हैं कि आप लंच में टीचर से शेडो हो पाए, आपके पीछे आप कुछ गलत काम ना कर बैठे। हमेशा नजर, आप गलत काम क्या करना, आप दूसरे से फाइट ना कर लीजिए, आप किसी को गलत शब्द ना बोल दीजिए। इस बात को ध्यान में रखने के लिए हमेशा हम लोग 3 चीज खोलकर, आंख नाक कान खोलकर आपके सामने हम टीचर सभी लोग खड़े होते हैं। यहां तक कि छुट्टी तक हम लोग क्यों रहते हैं बाहर, ताकि आप लोग अच्छे से अपने घर को चले जाइए। हम लोग पढ़ा दिए, घंटी बज गई, बच्चा गेट से बाहर निकल गया, मेरी ड्यूटी खत्म। नो, देखते हैं कि बाहर जब वहां के पास सब बच्चे भीड़ लगाकर खड़े होते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं, यहां नहीं रुकना है, गाड़ी पकड़िए और घर जाइए। तो क्या हम लोग एक माता पिता से कम है क्या? क्या हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक होती है कि बच्चे घर जाए? अगर बच्चे को कुछ होता है तो यहां से निकल, अरे ऐसा हुआ क्या लगता है अपना। अगर आप लोग कितने भी भारी से भारी गलती करते हो, लेकिन हम लोग क्या क्या करते हैं, बहुत लोग जैसे माता पिता मारते हैं, 2 थाप मारते हैं, तो क्या हम लोग अगर चाहे तो क्या? लेकिन नहीं, हम लोग को आपसे इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है आप लोग से। हमारे बच्चे हैं, हमारा छोटा भाई है, हमारा स्टूडेंट है। अगर कितना भी आप कुछ बोलते हो तो बहुत गुस्सा आता है तो बाल पकड़ के 2 थाप लगाते हैं, नहीं तो डांट करके छोड़ देते हैं। अगर गार्जियन आते भी हैं तो आप इतने बड़े गलती कर देते हो कि गार्जियन मारने के उतावले हो जाते हैं। गार्जियन को हम ही लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं सर, बच्चा तो गलती करता है, हम लोग को पिटना नहीं है, इनको प्यार से समझाना है। ये सब हमारे टीचर का रोल है। एंड लास्ट पॉइंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में थोड़ा आपको समझना होगा, क्योंकि वो हम लोगों को कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। इंगेजिंग इन रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होती है, once in a year or twice in a year for teacher is a great way to enhance the effective teaching and learning in our classroom. अगर हमारे मैनेजमेंट सर यहां होंगे तो वो सुन ही रहे होंगे। हम लोगों की एक ट्रेनिंग होती है टीचर लोगों, जो साल में 1 टाइम या 2 टाइम होती है, जिसको बोला जाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिसमें आज पढ़ाने के जो नए नए जो तरीके आते हैं, टेक्नोलॉजी आते हैं, या इफेक्टिव वे जो होता है, वो हम टीचर लोग के साथ शेयर किया जाता है। और हम टीचर लोग वहां पर स्टूडेंट बनकर बैठते हैं और बाहर से बहुत अच्छे ट्रेनर आते हैं वो ट्रेंड करने। और वहां पर हम लोगों की रोल होती है एक बच्चे का। हम लोग को कोई प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, हम लोग को कोई टास्क दे देते हैं, और हम लोग उस टास्क को बच्चे बनकर पढ़ने में बहुत मजा आता है। हम लोग टीचर को, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और वो इसलिए पढ़ते हैं कि आज जो बाहर से ट्रेन आए हुआ, साल में एक बार जो दिए सर्टिफिकेट भी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग को स्कूल के द्वारा करवाया भी गया है, हम सब टीचर हैं, किए भी हैं, साल में 1 टाइम 2 टाइम आते हैं लोग। उस चीज से फायदा यह होता है कि वो चीज इंप्लीमेंटेशन हम अपने बच्चों पे करते हैं, वो इंप्लीमेंटेशन हम अपने बच्चों पे करते हैं। तो क्या क्या होता है, न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज जो नया एजुकेशन है उसमें क्या टेक्नोलॉजी को यूज करना है, इसमें वो बताया जाता है उस प्रोफेशनल प्रोग्राम में। नंबर 2, ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग। आज देखिए सबसे आम बात, कुछ बच्चों बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजाक में ही कुछ बच्चे बोलते हैं, सर क्या कंप्यूटर का मार्क्स जुटता है क्या? देखिए मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कंप्यूटर की मार्क्स जुटती है क्या? कंप्यूटर की मार्क्स क्या है?
आज आप सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आज आप टेक्नोलॉजी से कर रहे हो। कौन टेक्नोलॉजी? जिस टेक्नोलॉजी की मार्क्स आपकी नहीं जुड़ती। तो क्या ये टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना आपके पास आज आपके पर्सनालिटी का एक पार्ट बन गया है या नहीं बन गया है? आज हमारा कौन सा, अगर डॉक्टर बनते हो तो डायग्नोसिस करने के लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर साइंटिस्ट बनते हो तो रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर इंजीनियर बनते हो तो उसमें डाटा इंप्लाइट करने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या ये जितना आप करते हो इसकी सेफ्टी भी उतना ही जरूरी है। सेफ्टी भी उतना ही जरूरी है। तो इस टेक्नोलॉजी में, इस सेमिनार में जो हम लोग को प्रोफेशनल होती है, प्रोग्राम होता है, उसमें यह भी सिखाया जाता है कि ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग। जैसे आप ऑनलाइन क्लास तो कर रहे हैं, आपके डिवाइस में बहुत सारे डाटा हैं, हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका हम लोग सेफ्टी कैसे करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे भी और पढ़ने के साथ साथ अपने डाटा को सेफ्टी भी करना, ये सारे उसके अंदर सिखाई जाती है। थर्ड, हाउ टू यूज आवर टीचर टीचिंग असिस्टेंट। हम अपने मेथड को कैसे अपनाएं पढ़ाने का, ताकि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, बच्चों में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। एंड इफेक्टिवली एंड इट इज, उसे इतना हो सके। आज हम किसी विलेज में जाते हैं और सुनने को यह मिलता है कि आज आपका बच्चा यहाँ पे इस जगह पे है, इस कंपनी में है, तो आज बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सीपीएस के बच्चे, हम टीचर लोग जो इतने मेहनत करते हैं, जो बच्चे आज हमारे वहां पे हैं। तो रही बात मेहनत की, हमारी मेहनत के साथ साथ आपकी भी मेहनत होना बहुत जरूरी है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक आप अपना सेल्फ अवेयरनेस नहीं दिखाते हैं, आप अपना सेल्फ लेबर नहीं करेंगे, जब तक रंग नहीं लाएगा। तो रंग लाने के लिए दोनों तरफ से होना कॉपरेशन जरूरी है। हम लोग जितना मेहनत करते हैं, आप भी उतना ही मेहनत कीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन को उसे ही फॉलो कीजिए, आपके जीवन में कभी हार नहीं मिलेगा। ये हम लोग लिख कर देते हैं, हम लोग सारे टीचर लिख कर देते हैं कि अगर जैसे टीचर बोलते हैं, जैसे माता पिता बोलते हैं, उनको फॉलो कीजिए। आपके लाइफ में कभी भी आप नष्ट नहीं होंगे और हमेशा आपकी रास्ता आगे की ओर, जो भी पहाड़, जो भी पत्थर होंगे, अपने आप वो साइड होते चले जाएंगे और आप केवल अपना मेहनत कीजिए। कर्म ही पूजा है इंसान का। अगर हम कर्म ना करेंगे, भाग्य के दौरान पर छोड़ देंगे, भाग्य कुछ नहीं होता है, इंसान का कर्म होता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, ना कि मनुष्य की भाग्य बनकर आती है। आप जितना मेहनत करोगे उतना कर्म मिलेगा। अगर हम उतना में कर्म नहीं करते हैं तो नहीं मिलती। आज हम 2 नंबर 4 नंबर से क्यों छट जाते हैं? हम अपने बारे में या किसी के बारे में, उतनी हमारे पास मेरिट नहीं थी। आज पास हो जाते हैं तो हम उतना मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं। आज सीपीएस में देखे 90% से ऊपर रिजल्ट आया, बच्चों ने मेहनत किया। आज पेपर में पढ़ते हैं कि कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के इतने बच्चों ने इतना से इतना रंग लाया। अच्छा लगता है कि चलो हम टीचर इस लायक तो है कि अपने बच्चों को इस लायक तो बना देते हैं। तो बस इन लास्ट, ज्यादा नहीं, फिर देवेंद्र सर का भी टाइम है। यही कह रहे हैं कि हम टीचर फॉलो करते हैं इस मेथोडोलॉजी को, बिल्कुल करते हैं। भले आप लोग उसको नजरअंदाज करते हो या आप लोग देख नहीं पाते हो, आप लोग उसको ये करते हो और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस इफेक्टिव मेथोडोलॉजी को, टीचिंग मेथोडोलॉजी को हम लोग लागू करें कि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। थैंक यू। हैव यू एनी क्वेश्चन देन आस्क टू मी। राजीव सर। Thank you, sir. Thank you for your valuable speech, because you have mentioned everything related to teaching, and really effective teaching is very much necessary in life. So, yeah, by this way, the session for Alok is finished over here.